हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 12th सीरीज में आगे बढ़ते हैं। इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस टिल क्वेश्चन नंबर 9 of the exercise 6.1. I come to the question number 10. In the question number 10 it is given a ladder is 5 meter long, is leaning against the wall. The bottom of ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is this height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter from the wall? यदि इस क्वेश्चन को हम ठीक से समझें तो इट विल बी लाइक दिस। ये आपका लैडर है, तो इट इज लीनिंग अगेंस्ट वॉल। इफ आई कंसिडर दिस डिस्टेंस एज एक्स, दिस इज वाई, एज दिस एंड विल मूव अवे, the x will go away and y will, this one particular end will go down. In this way your x will change it dx by dt. In the same way your y will also change. One more thing, this length will be equal to x is under root of x square plus y square. In this question length of the ladder is given 5 meter. So if I apply Pythagoras theorem, I will get x square plus y square is equal to 25. So while solving the question, the same concept is taken. In this it is given that the height of the wall with the ladder is touching is y meter and distance of its foot is x meter. So x square plus y square will be equal to 25 we can take. X square plus y square we can take, it is equal to 25. Now you differentiate this with respect to time. So what you will have 2x dx by dt plus 2y dy upon dt, that would be equal to 0 because right side it is equal to 25. So it difference is then 2x dx by dt plus 2y dy upon dt equal to 0. 2 also we can cancel out. So we'll have x dx by dt equal to minus y dy upon dt. So I'm writing x dx upon dt is equal to minus y dy upon dt. So it becomes x dx upon dt equal to minus y dy upon dt. You know dx by dt is already given. ये दे रखा है कि जिस रेट से अवे जा रही है दैट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, मगर इसे dx by dt को 2 सेंटीमीटर पर सेकंड हम रख देंगे। और निकालना कब है अब आपको, व्हेन फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ये वॉल है, फुट ऑफ लैडर दिस इज 4 मीटर अवे, मीन्स व्हेन x इज 4। तो ये आपको मालूम है कि 5 है, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे तो y इक्वल टू 3 हो जाएगा। x 4 हुआ, y 3 हुआ, dx by dt इक्वल टू 2 हो गया। ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। x इज 4, y इज 3, तो मैं x 4 पुट कर देता हूँ, y 3 पुट कर देता हूँ एंड dx by dt इक्वल टू 2 पुट कर देता हूँ। तो x मैंने 4 पुट किया, dx by dt 2 पुट कर दिया और राइट साइड में हमारा y इक्वल टू हमने इसमें पुट कर दिया है, दैट इज 3। और dy अपॉन dt की वैल्यू इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, माइनस 3 dy अपॉन dt। So dy upon dt will be equal to minus 8 by 3 आ जाएगा। In this way we can solve this one particular question। या PDF में जैसे दे रखा है वैसे मैंने इसको बताया नहीं है। Next question is, a particle is moving along the curve 6y equal to x cube plus 2. Find the point on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate का मतलब ये होता है कि dy इज इक्वल टू 8 टाइम ऑफ dx या dy अपॉन dt। y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। इट मींस dy अपॉन dt इज 8 टाइम्स ऑफ dx बाई dt ले लेंगे हम। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके अंदर 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 दे रखा है, तो आप इसको विद रेस्पेक्ट टू टाइम बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर दीजिए बस। तो हम इसको करेंगे, 6y का डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन dt आया, इधर एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर dx बाई dt हो गया।
क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन दे रखा है कि dy अपॉन dt इज 8 टाइम्स ऑफ dx बाई dt। तो यहाँ पे जो dy अपॉन dt है इसकी 8 टाइम्स ऑफ dx बाई dt रख दीजिए। ये यहाँ पे 8 टाइम ऑफ dx बाई dt रख दिया है। dx बाई dt बोथ साइड कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे x की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ जाएगी। x की वैल्यू प्लस 4 रखेंगे और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, वो 11 आ जाएगी। फिर x की वैल्यू -4 इसके अंदर रखेंगे, y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो -31/3 आएगा। इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट एट विच योर x कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। तो इस क्वेश्चन में और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। dy अपॉन dt 8 टाइम्स ऑफ dx अपॉन dt दे रखा है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करिए और दोनों तरफ वैल्यू पुट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 पर हम आ जाते हैं। द रेडियस ऑफ ए एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट दिस रेट, हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट विच रेट इज द वॉल्यूम ऑफ बबल इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। तो एयर बबल इज स्फेरिकल इन शेप होता है। यहाँ पे dr बाई dt दे रखा है और dv बाई dt निकालना है इन केस ऑफ स्फेयर। तो स्फेयर के केस में वी नो दैट v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब होता है। इसको विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो dv बाई dt इक्वल टू इधर 4/3 पाई तो एज इट इज आ जाएगा और r क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3r² आएगा। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 पाई r स्क्वायर dr बाई dt आ गया। यहाँ पे dr बाई dt इज ऑलरेडी गिवन इक्वल टू हाफ। तो dr बाई dt की वैल्यू आप रख दीजिए और जब आपको ये dv बाई dt निकालना है तो रेडियस 1 सेंटीमीटर दी हुई है। तो r की जगह 1 सेंटीमीटर और dr अपॉन dt की जगह आप हाफ पुट कर दीजिए, dv बाई dt की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये डायमीटर दे दिया आपको, तो इसकी रेडियस हमें मालूम है, इससे हाफ हो जाएगी। रेडियस इज इक्वल टू हो गया 3/4 इंटू 2x प्लस 1। b इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो r की वैल्यू वॉल्यूम में रख दीजिए। r की वैल्यू मैंने यहाँ पे वॉल्यूम में रख दी है। तो v इक्वल टू 4/3 पाई ये r क्यूब की वैल्यू रख दी है। अब मुझे निकालना है db बाई dx। तो इसमें कुछ भी नहीं है, विद रेस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। लेफ्ट साइड में dv बाई dx आया, राइट साइड में एक कांस्टेंट नंबर है, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। आपको डिफ्रेंशिएट करना है 2x प्लस 1 होल क्यूब को यूजिंग आपका चेन रूल। तो पहले आएगा आपका 3 इंटू 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, 3 इंटू 2x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 2 आएगा आपका। ये यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है जो मैं बोल रहा हूँ वो नोट कर लेना। यहाँ पे dv बाई dx इज इक्वल टू 9/16 पाई एज इट इज रहेगा। इसका डिफरेंसेशन आएगा 3 इंटू 2x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 2 एंड दैट वुड बी योर आंसर। इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका मतलब सैंड उससे इसका वॉल्यूम दिया हुआ है इस मजे में dv बाई dt। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट 12 सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे v कैसे पता चला, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इट मीन्स dv बाई dt 12 दिया हुआ है। तो फॉलिंग सैंड फॉर्म ए कोन ऑन द ग्राउंड। जो सैंड गिर रही है वो एक कोन बना रही है इन सच ए वे द हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। तो हाइट ऑफ कोन h हमेशा 1/6 ऑफ रेडियस रहती है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन हाइट इज 4। आपको dh बाई dt निकालना है। dv बाई dt 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दे रखा है, h इक्वल टू r/6 भी दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा आपने 1/3 पाई r स्क्वायर h और इसमें r की जगह हमने 6h पुट कर दिया, r को एलिमिनेट कर दिया। तो ये हमारे पास बच गया 12 पाई h क्यूब। अब देखिए dv बाई dt दे रखा है, dh बाई dt निकालना है। तो इसको बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। लेफ्ट साइड में dv बाई dt आएगा, राइट साइड में आ जाएगा 36 पाई h स्क्वायर dh बाई dt। h क्यूब को डिफ्रेंशिएट करना है, वो 3h स्क्वायर dh बाई dt हो जाएगा। अब dv बाई dt ऑलरेडी गिवन है और जब आपको निकालना है हाइट भी 4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो dv बाई dt की जगह आप 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड रख दीजिए और हाइट की जगह 4 सेंटीमीटर रख दीजिए। आपके पास dh बाई dt की वैल्यू आ जाएगी। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट दिस। क्वेश्चन नंबर 15 है द टोटल कॉस्ट Cx इन रुपीज इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाई दिस।
इसको हम कॉस्ट फंक्शन भी बोलते हैं। फाइंड मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो स्टूडेंट मार्जिनल कॉस्ट सी एक्स बाई डी सी बाई डी एक्स होती है। बस जो सी दे रखा है उसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे मैंने मार्जिनल कॉस्ट डी सी बाई डी एक्स लिया, इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दिया, तो 0.007 इंटू 3x स्क्वायर आएगा, माइनस 0.003 इंटू 2x प्लस 15 आएगा, और 4000 का डिफरेंशिएशन 0। अब मार्जिनल कॉस्ट वो निकल रहा है व्हेन x इक्वल टू 17। तो जो भी आया है इसमें x की जगह 17 पुट कर दीजिए, आपको मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 है द टोटल रेवेन्यू इन ए रुपीज रिसीव्ड। रेवेन्यू दे रखा है आपसे, पिछले क्वेश्चन में मार्जिनल कॉस्ट थी, इस क्वेश्चन में मार्जिनल रेवेन्यू निकलवा रहा है। तो मार्जिनल रेवेन्यू डी आर बाई डी एक्स होता है बस। तो आप जो आर दे रखा है इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ, तो डी आर बाई डी एक्स हो जाएगा आपका 26x प्लस 26। इसके अंदर आप x की जगह 7 पुट कर दीजिए, यू विल हैव द वैल्यू ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 17 है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस r व्हेन r इज 6 सेंटीमीटर। तो देखिए एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का, इसको विद रेस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट करिए, इधर डी ए बाई डी आर आएगा, इधर 2 पाई आर आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर को विद रेस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट करना है, पाई एज इट इज आर स्क्वायर का 2r आ गया, तो डी ए बाई डी आर 2 पाई आर आ गया, r 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसमें रख दीजिए, तो 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 है द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज इज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाई दिस। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन एक्स इज 15। तो अभी कराया था डी आर बाई डी एक्स निकालिए, वो देखिए यहाँ पे 6x प्लस 36 हो जाएगा, 6x प्लस 36, x की जगह 15 पुट कर दीजिए, तो यू विल हैव द आंसर। मैं x की जगह 15 पुट कर दीजिए, तो 15 6 90 प्लस 36 126 इज द आंसर। इन दिस वे दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीट। इसमें अभी भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो यू कैन सेंड मी कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई यू इमीडिएटली। थैंक यू।